as far as the Prime Minister's campaign is concerned, we've seen him campaigning in Bihar today, but later in the day, he will be reaching Varanasi. As he said in our mega exclusive, कि माँ गंगा ने बुलाया है, and this is the third time Swati Joshi, our my co-anchor, and also joining us from Varanasi live, because she will take you through as far as today's Prime Minister's roadshow is concerned, Swati, and of course tomorrow is the day when he files his nomination. Over to you. Well, thank you very much, Amita. We're joining you live, viewers. Good afternoon. I'm Swati. We're joining you live from Varanasi, from Baba Vishwanath ki Nagri Kashi, which is the constituency of Prime Minister Narendra Modi. Well, in 2014, he came here as a candidate. In 2024, the Prime Minister says that he is Ma Ganga's adopted son. He said, "Mujhe Ma Ganga ne god liya hai." So he is in 2024 coming to Varanasi as the son of Ma Ganga. Let me first show you around a little bit. It's a bustling street behind me. Multiple things happening. We are at the gate of Kashi Hindu Vishwavidyalaya. We are at the Lanka gate. This in fact is a starting point of the Prime Minister's roadshow, and it will actually be a little unfair to call it a roadshow, because this is going to be a mega display of the achievements of this government. Here right behind me is the statue of Pandit Madan Mohan Malviya. The Prime Minister will begin his roadshow from here by garlanding, paying tributes to Pandit Madan Mohan Malviya, and then from here on the roadshow will begin. It will all happen amidst Shankhnath, blowing of the conch shells and reciting of the mantras. We here have somebody with us, और मैंने सुना है कि आप हर बार जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं इवेंट में तो आप वहां जाकर शंखनाद करते हैं. हमारे व्यूअर्स के लिए भी जरा अगर आप शंखनाद करें. जी, मेरा नाम विकास बाल महाराज है. मैं बार प्रधानमंत्री जब काशी में आते हैं तो काशी में बोले थे ये हम माँ गंगा ने बुलाया, और हम लोग युवा उनको शंखनाद करके स्वागत करते हैं. जी, जो जैसे स्वागत करे. प्रधानमंत्री यहाँ का बेटे हैं, जो जैसे उनको दुलार प्यार दे. ये वाराणसी कस्से गंगा घाटम की में प्रसिद्ध है. वरुणा नदी किनारे बसा ये विद्वानों की नगरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और यहाँ पेट में ही विद्वान पैदा हो जाता है. अब जब प्रधानमंत्री कह दिए हैं कि यहाँ के बालक हैं, तो उनको तो इतना ज्ञान, इतना उत्सव ज्ञान, और महादेव के त्रिशूल पे बसी. हम हमारे बुलेटिन की शुरुआत भी आपके शंखनाद से करते हैं. That I'll use to describe like one usually asks माहौल कैसा है वाराणसी में, तो माहौल कुछ ऐसा है वाराणसी में. 10 lakh BJP workers are all working on this roadshow of the Prime Minister. Massive preparations still underway, and senior party functionaries also on ground to ensure everything happens smoothly. We spoke to some people. Let's listen into the reactions. 10 सालों में सर अगर देखा जाए तो बनारस जो है बहुत बदला. पहली बात तो जो है कि यहाँ कॉरिडोर जो बनाए जो है मोदी जी के आने के बाद ही कॉरिडोर बनाया गया, जबकि हम लोग विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गलियों में जाते थे, गंगा घाट खोजते थे, वहाँ विश्वनाथ जी के पास जो है नहीं मिलता था, भटक जाते थे. कॉरिडोर जब से बनाए हैं यहाँ पर्यटक जो है कि कई गुना जो है इजाफा हो गया, काफ़ी लोग को रोज़गार भी मिल गया, और सड़कें भी यहाँ की अच्छी हो गई. बहुत बदला, जिसका हम आपको कोई लेख नहीं कर सकते कितना बदला 10 साल में. हमारे नज़र में तो पहले तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बदला, उसके बाद घाटों की जो काम हुआ वो बदलाव हुआ. आज जो और भी घाटों के जो कार्य चल रहे हैं वो सब बदलाव हुए. आप अगर ये सवाल बनारस की जनता से कर रहे हैं तो ये कहीं फिट ही नहीं सवाल होता है. उनको ही बनारस में आना है, और बनारस में आ गए तो सब जगह से तो फिर समझ ही सकते हैं आप. Well, before we move on and go across to our reporters, let's tell you a little bit about the entire route. It's going to be a 5-kilometer road show, and along with the Prime Minister on the Rath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, will also be present. The road show will begin at around 5:30 p.m. So this is the starting point right behind me, the Lanka gate. From here, the road show will start of the Prime Minister, and then it will go through Assi, Sonarpur, Jangambadi, Godolia, Bansfatak, and finally the Prime Minister would offer prayers at Kashi Vishwanath temple. Like I said, the Chief Minister of Uttar Pradesh is going to accompany the Prime Minister. And let's in fact take a look at the beats or the stage that has been set here. From Mahamana to Mahadev,
That's how this journey is being described. You can see a stage being erected at every few meters along this road, which is going to be a massive display of not just the achievements of this government, but through this, in fact, what you'll see here in Varanasi is a glimpse of mini India, because people from various communities are going to be present here who would be welcoming the Prime Minister by showering rose petals on him. Let's take a look at this ground report sent by my colleague Ashutosh. देश के सबसे बड़े नेता और मौजूदा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है। नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 5 बजे वाराणसी में भव्य रोड शो करेंगे, लेकिन उसके पहले ही जो वाराणसी की जनता है वो इस वक्त सड़कों पर उतर आई है। सुबह का वक्त है, लेकिन अभी से ही सड़कों पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सांसद नरेंद्र मोदी जी का इस वक्त इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर मौजूद है। और देखिए, इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जीत को जो जश्न दम है उसी को मोदी, तो मतलब खैर मकदम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर आए हैं। क्या कहेंगे, आज मोदी जी यहाँ पर रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, कितनी उत्सुकता है आप लोगों में और किस तरीके से धन्यवाद आप लोग ज्ञापन कर रहे हैं? मोदी जी का बहुत बहुत बनारस की जनता, काशी के सभी मुस्लिम जो है उनका स्वागत कर रहे हैं और हम मुसलमानों का पूरा साथ है मोदी जी का। अब की बार हम लोग की यही है कि मोदी जी की 400 पार। इस संग के साथ ही आज जो है वो शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की। इसके लिए तैयारियां जो है वो काशी में की जा रही है। देखिए, बीएचयू के ठीक सामने महामना की ये प्रतिमा है जिसको सजाया जा रहा है। पीएम मोदी जो है यहाँ माल्यार्पण कर अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और इसके लिए किस तरह की तैयारियां की है एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूरे रोड को इस तरह से भगवामय कर दिया गया है। अब व्हाइट और भगवा बलूनों से पूरे रास्तों को सजाया गया है। बीजेपी की झंडियां लगाई गई हैं और जोश इतना है शहर के लोगों के अंदर कि पूरा जो सड़क है उसके चारों तरफ बच्चों की बल्लियां लगाई गई हैं और माना जा रहा है कि चारों तरफ जो है लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि करीब 500 बाइक सवार जो होंगे वो आगे आगे चलेंगे। करीब 10 लाख लोगों को इस रोड शो में जोड़ने की तैयारी है। महिलाओं को भी इस रोड शो में हिस्सा वो लेंगी और कहा जा रहा है कि पूरे देश की छवि दिखेगी। प्रज्ञा हमारे साथ है। प्रज्ञा जी, महिलाओं की भूमिका क्या होगी इस रोड शो में? देखिए, मातृशक्ति, हम सब एक हफ्तों से तैयारी में लगे हुए हैं और मातृशक्ति के लिए 100 पॉइंट्स बने हुए हैं जहां पे हर पॉइंट्स पे मातृशक्तियां रहेंगी और कुछ मातृशक्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भी चलेंगे। ये 13 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के प्रत्याशी के रूप में अपना 14 को नामांकन दाखिल करेंगे। उसके पूर्व संध्या पर 13 मई को एक भव्य शो जो पूज्य मालवीय जी की प्रतिमा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सिंहद्वार है, तो मालवीय जी की प्रतिमा को नमन करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वो आगे बढ़ेंगे और शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए बाबा विश्वनाथ के धाम तक। क्या थीम रहेगी और कितने पॉइंट्स आपने बनाए गए हैं, क्या क्या कल्चरल प्रोग्राम रहेंगे? विरासत भी विकास भी जो सरकार कहती है, काशी के लिए जो जो किया वो सब दिखाई देगा, भारत दिखेगा उसमें पूरे। बनारस में कला भी है, संस्कृति भी है, गीत भी है, संगीत भी है, लोक गायकी भी है। यहाँ अगर शास्त्रीय परंपरा है तो लोक गायन भी है। Well, you heard those reactions coming in and it's really hot out here. It's almost 40 degrees. It's touching 40 degrees. But just take a look at these people, the enthusiasm, and continuously announcements are being made here to not park their cars or to not gather, but people just can't stop themselves. They are gathering here to catch a glimpse of Prime Minister Narendra Modi. That's how the entire Varanasi looks like. This particular street right behind me will give you an exact picture of how Varanasi feels today.